Has been started. Hi team, this is Rajesh Shankar. And in today's session, what we're going to do is we are going to kickstart our internship program. Okay, right? So when we say internship, so we have enough talked about I talked about internship in our webinars. But let's talk technical today. Okay. So today we talk about the full stack development. Any idea team? I throw this question to you. Any idea? कोई idea कि full stack development क्या होता है? हम किसको full stack development बोलते हैं? तो फ्रंट एंड और सब जो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पे काम होता है सर। One by one. Yeah. Full stack development किसको बोलते हैं? सर फुल स्टैक डेवलपर दो सर जो दोनों पे काम करे, फ्रंट एंड बैक एंड और डेटाबेस। Okay. What about you, Hamad? Client side and server side, both. Okay. Manish, you want to throw something? Sir, already did client side and server side, both. Okay. Hamad, what about you? सर जो फ्रंट एंड और बैक एंड पे और सर डेटाबेस पे सर जितना भी सारा काम होता है सर वो फुल स्टैक डेवलपर करता है। Okay. यस सर। Okay. Anyone else? Anyone else who wants to throw knowledge on full stack? Yes, sir. Anyone else who wants to throw knowledge on full stack? No, sir. No one? Okay. Let's see from diagram. Okay. Let's see from diagram and let's try to understand this once. Okay. So when we say full stack development means there has to be front end layer, there has to be a middleware layer, to be a backend layer, there has to be a database layer, there has to be a mobile layer, because nowadays mobile is also important. As a full stack, mobile I will also include. Okay. Team, you got one point? Correct. So let's discuss one by one. So when you say full stack means complete development cycle, which means right from designing, development of front end layer, then talking to business logic layer, which we call middle layer, which we call API layer basically, then talking to database, correct, then your mobile, correct, and finally your server, where everything is hosted and working properly. So that all these things get together and make full stack. तो ये सब चीजें मिलके full stack development बनाते हैं. फिर से रिपीट करता हूँ. फ्रंट एंड लेयर, बैक एंड लेयर में आपका बिजनेस लॉजिक लेयर या एपीआई लेयर आती है, करेक्ट. इसके बाद डेटाबेस लेयर, डीबी लेयर, वो सेपरेट है, डीबी लेयर, करेक्ट. और एक और लेयर जिसको हम आजकल इंक्लूड करते हैं, मोबाइल लेयर, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. करेक्ट टीम? यस और नो? बिना मोबाइल के आजकल फुल स्टैक डेवलपमेंट होती है क्या? नो राइट. तो फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए मोबाइल बहुत 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 जरूरी है. So कोई any comment, any point you wanted to add? Because I wanted to make this one as a conversation, not preaching कि एक बंदा जो है वो बोल रहा है और बाकी सब सुन रहे हैं. I want to make it like a conversation कि हम एक conversation कर रहे हैं. We are trying to discuss something on a technology. We are technical people, right? We talk technical. सर दिस साइड जयंती सर. सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फुल स्टैक डेवलपर में पीसी के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर करना या फिर आपके मोबाइल के लिए एप्लीकेशन डेवलप करना और डिज़ाइन करना,
हेलो, आई गेस तुम्हारी वॉइस दोबारा ट्राई करो। ओके, एनीवन एल्स हु वांट्स जंप इन एंड स्पीक समथिंग? बहुत सारे लोग हैं यार, तो आज तो रिकॉर्ड तोड़ आ गए मीन स्टैक के लिए, फुल स्टैक के लिए, राइट? यू ऑल वांटेड टू लर्न फुल स्टैक, इजंट इट? You all are interested in full stacks. We have Shubhadeep Singh, we have Shirar, we have Satyam Anand, we have Sandeep, Ravi, Priyanshu, Mansi, Kanishka, Jayanti, Hamad, Bindu, so many people, right? So किसी को कोई पॉइंट इसमें ऐड करना हो अभी तक जो मैंने बोला, फुल स्टैक डेवलपमेंट मतलब जिसमें फ्रंट एंड लेयर हो, जिसमें बैक एंड लेयर हो। बैक एंड लेयर मतलब आपकी जिसमें बिजनेस लॉजिक लेयर या एपीआई लेयर है, आपने उसमें इसमें बैक एंड लेयर हो, बैक एंड लेयर के पास डीबी लेयर हो और एक मोबाइल लेयर हो, तभी हम फुल स्टैक डेवलपमेंट इसको कंसीडर करते हैं, तभी हम फुल स्टैक डेवलपमेंट मानते हैं, राइट? कंप्लीट डेवलपमेंट, राइट फ्रॉम डिजाइनिंग टिल डिप्लॉयमेंट, और फाइनली इसमें सर्वर हो डिप्लॉयमेंट के लिए, तब हम बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट है, हम डिप्लॉय भी कर पा रहे हैं। Correct? Do you all agree or not? agree. Okay. So now my simple question is कि इस full stack development में front end layer सबको समझ में आती है? या let me ask this one. Front end layer का क्या मतलब है? What do you mean by front end? क्लाइंट जो देखता है, यूजर जो देखता है, इंटरफेस जिससे करता है, वो फ्रंट एंड होता है। और बैक एंड में लॉजिक जो होता है, मतलब बटन पे कोई क्लिक करेगा या फॉर्म सबमिट करेगा तो वो बैक एंड लेयर काम करती है वो सारा। जिसमें मैंने प्रोग्रामिंग बैक एंड नहीं लैंग्वेज के पूछा। थ्रू जो है ना वो लिखा है। Wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. Let's go step by step. मैंने सिर्फ फ्रंट एंड पूछा है, मुझे सिर्फ फ्रंट एंड का जवाब दो कि what do you mean by front end layer? So Jayanti, any comments on front end layer? What is front end layer? क्लाइंट जो देखता है ब्राउजर पे, जिससे वो इंटरेक्ट करता है, फ्रंट एंड उसी Already को कहते answered. You already answered. Wait for your turn. Yes, Jayanti, you were saying something. सर ठीक कह रहे हैं, जो हमें जो है क्लाइंट को, यूजर्स को जो दिखाई देता है सामने, जिस पर वो काम करता है, ठीक है, उसके वही सब फ्रंट एंड ही है। Okay. और Anyone else? बैकएंड में सब। बैकएंड मैंने पूछा नहीं ना, बैकएंड में क्यों जा रहे हो? We have not discussed backend. ओके ओके। Let's not create. Okay. Step by step, one by one. आज ही खत्म नहीं करना है. May I, sir? Yeah, yes, go ahead. सर Front end जो layer. What do you think about the front end सर जो डेवलप किया जाता है फॉर यूजर सर, जो उसको एक्सेस कर पाए, यूजर एक्सपीरियंस सर। layer? Okay. Anyone else? Front end layer. सर जो वेबसाइट्स है जो हम देख सकते हैं, जो यूजर्स यूज करता है, कोई वेबसाइट हम यूज करते हैं, जो आगे का स्ट्रक्चर दिखता है, जो फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन होते हैं जो शो होते हैं, वो फ्रंट एंड में होता है वो काम, जितना आगे फ्रंट में शो होता है। So all of you, anyone else before I close this? Anyone else wants to try front end? कुछ और थ्रो करना चाहते हो फ्रंट एंड लेयर के लिए? कोई चीज जो मिस हो गई हो फ्रंट एंड लेयर के लिए? Okay. So front end layer, for one part you all are correct कि you have explained it well कि front end layer is something which user interacts with, right? Front end layer is something which user interacts with. तो user जो है front end layer से ही interact करता है, या जिस layer से user interact करता है उसको front end layer बोलते हैं। Agree? No problem. ये front end layer होती कहाँ पर है? Where actually this front end layer resides? कहाँ होती है front end layer? तो मनीष, आसीम, जयंती, अर्पित, सत्यम, एनीवन? ये फ्रंट एंड लेयर होती कहाँ पर? सर ब्राउजर में होती है, मतलब ब्राउजर में नहीं होती है, कोड, ब्राउजर का कोड जो है वो इंटरेक्ट करता है, जो हम कोड लिखते हैं HTML, जावास्क्रिप्ट और ये क्या करते हैं उसको CSS। Okay, so Tasim is saying front end layer ब्राउजर में होती है. Okay, anyone else wants to try? कि फ्रंट एंड लेयर हमारी कहाँ रिजाइड करती है? Where exactly front end layer resides? सर ब्राउजर में नहीं होती है, जो हम कोड लिखते हैं वो ब्राउजर से इंटरेक्ट करती है, जो क्लाइंट को दिख सके। Anyone else wants to try?
So our whole front end layer basically, हाँ बोलो, go ahead. सर जो मैनिपुलेटेड बाय द यूजर सर, यानी कि जो सर्वर साइड, मैंने पूछा, हाँ मेरा जो क्वेश्चन था कोड कि डिजाइन करता where, है। hold on, listen to my question first, no? Where exactly front end layer resides? Front end layer किस कहाँ पर होती है? सर्वर साइड पर होती है कि क्लाइंट साइड पे होती है? लो तुम्हारा क्वेश्चन थोड़ा और इजी कर दिया। फ्रंट एंड लेयर बेसिकली क्लाइंट साइड पर होती है या सर्वर साइड पर होती है? सर सर्वर साइड पे ही होगी। क्लाइंट साइड पे, क्लाइंट साइड पे। Client side. क्लाइंट साइड, ओके, क्लाइंट साइड। ठीक है, फ्रंट एंड लेयर क्लाइंट साइड, क्लाइंट साइड पे एग्जैक्टली आती कैसे है? सो देयर आर डिफरेंट फ्रेमवर्क्स, करेक्ट? सो यस, यू आर करेक्ट कि फ्रंट एंड लेयर बेसिकली रिजाइड्स एट क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड मींस ब्राउजर में, एग्जैक्टली तुम्हारी जो फ्रंट एंड लेयर वो ब्राउजर में होती है, राइट? बट जो टेक्नोलॉजी उसके पीछे है कि इन विच टेक्नोलॉजी यू हैव डिजाइन द फ्रंट एंड लेयर, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि आपका जो फ्रंट एंड है वो डायरेक्टली ब्राउजर में जाएगा या सर्वर से रेंडर होके ब्राउजर पे जाएगा। फॉर एग्जांपल, if you have developed your front end in PHP और Java और .NET, तो ये तीनों तो सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज हैं, करेक्ट? If you have developed your front end right in PHP और Java और .NET, so ये Java PHP और .NET, these are server side technologies, which means अगर आप इनमें फ्रंट एंड बनाओगे, करेक्ट, तो ये पहले क्या करेगा? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। तो अगर आप जावा में, डॉट नेट में या पीएचपी में आप अगर फ्रंट एंड अपना बनाते हो, सो दिस फ्रंट एंड विल बी देयर एट सर्वर साइड, एंड एवरी टाइम व्हेनेवर वी कॉल द पेज, लेट्स से मैंने facebook.com खोला, तो facebook.com तो PHP बेस्ड एप्लीकेशन है। Facebook is PHP based application, which means its front end is designed in server side technology, PHP. So when I actually call Facebook, so it first compiles into HTML because browser does not understand PHP. ब्राउजर आपका जो ब्राउजर है वो PHP नहीं समझता है, वो java.net नहीं समझता है, वो सिर्फ और सिर्फ HTML, CSS, JavaScript और XML समझता है। So if your front end is designed in PHP, let's say, or .NET or Java, तो जब मैं अपना पेज को कॉल करूंगा, let's say I call for facebook.com, Facebook is built in PHP, तो पहले वो पेज जो है PHP का वो सर्वर साइड पे ही कंपाइल होगा और HTML में रेंडर होगा, and after rendering the whole page from PHP to HTML and JavaScript, then only it will come to the client side. Client side means browser, client browser, correct? So that's how your front end work in server side technologies. अगर आप server side technologies में अगर अपना front end बनाते हो, so this is how your process goes. Is it clear to all of you? समझ में आया या नहीं आया? क्लियर। लेकिन आजकल क्या चलता है? बट आजकल क्या चलता है? Nowadays what works is हम लोग instead of designing or developing our front end in these server side technologies like PHP, Java or .NET, हम लोग क्या करते हैं? हम अपना फ्रंट एंड ऐसे फ्रेमवर्क्स में, जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क्स में डेवलप करते हैं जो ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट पे हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? फॉर एग्जांपल दोगे? जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क्स या लाइब्रेरीज का एग्जांपल दोगे जिसमें हम अपना फ्रंट एंड बना सकते हैं? रिएक्ट जेएस, ओके, रिएक्ट तो थोड़ा लेटेस्ट हो गया। स्टार्टिंग हमने किससे की थी? होल्ड ऑन, लिसन टू क्वेश्चन। नोड जेएस, स्टार्टिंग हमने कहां से की थी? नोड ये क्वेरी सर, स्टार्टिंग हमने ये क्वेरी जावा। ओके, सो हमने जब ये प्रॉब्लम देखी, व्हेन वी सॉ दिस इशू कि भाई बैकएंड सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज में फ्रंट एंड बनाना बहुत रिस्की है या बहुत टाइम कंज्यूमिंग है या परफॉर्मेंस वाइज अच्छा नहीं है या टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि सर्वर साइड से पहले वो रेंडर होता है HTML जावास्क्रिप्ट में और फिर ब्राउजर पर आता है। तो जो टेक्नीशियंस थे या बोले आर्किटेक्ट्स थे, दे थॉट व्हाई डोंट वी डिजाइन आवर फ्रंट एंड इन जावास्क्रिप्ट इटसेल्फ? भाई जब जावास्क्रिप्ट में ही कन्वर्ट होना है तो क्यों ना जावास्क्रिप्ट में बनाए? यस और नो? तो हमने क्या शुरू किया? हमने HTML के साथ जावास्क्रिप्ट यूज करनी शुरू करी और HTML जावास्क्रिप्ट को यूज करके हमने एजेक्स बनाया। XML और जावास्क्रिप्ट को यूज करके हमने एजेक्स बनाया
और पहला जो हमारा जो फ्रंट एंड फ्रेमवर्क था, जो जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क था या लाइब्रेरी थी, वो एजेक्स था हमारा। देन हमने jQuery यूज किया, jQuery के बाद नॉकआउट आया, नॉकआउट के बाद एंगुलर जेएस आया, राइट। एंगुलर जेएस ने बिल्कुल मार्केट खत्म कर दी बाकी सब जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज के लिए, राइट। फिर एंगुलर जेएस के कंपैरिजन में रिएक्ट जेएस आया, करेक्ट, जिसको फेसबुक ने लॉन्च किया। एंगुलर जेएस को गूगल ने लॉन्च किया, करेक्ट। जैसे रिएक्ट आया, रिएक्ट की मार्केट अच्छी हुई, तो एंगुलर जेएस ने अपना फ्रेमवर्क चेंज करके वो लोग भी रिएक्ट टाइप के फ्रेमवर्क पर आ गए। बट देयर फ्रेमवर्क, एंगुलर फ्रेमवर्क, वाज फार मोर स्ट्रॉन्गर देन रिएक्ट लाइब्रेरी, ठीक है। अब लेटेस्ट कौन सा चल रहा है, लेटेस्ट कौन सी जावास्क्रिप्ट चल रही है या जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी चल रही है? व्हाट इज द लेटेस्ट फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी? रिएक्ट जेएस लेटेस्ट नहीं है। रिएक्ट जेएस के बाद क्या आया? Vue.js, करेक्ट। सो लेटेस्ट क्या चल रहा है? Vue.js चल, राइट। सो Vue.js आया। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि डिफरेंट टाइम जोन्स में, या ऐसे बोले कि इन लास्ट 5 years वी ऑलरेडी गॉट गुड जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज जिसमें हम अपना फ्रंट एंड डिजाइन कर सकते हैं। तो इसमें बेस्ट, इसमें एडवांटेज क्या है कि डायरेक्टली आपका क्लाइंट ब्राउजर में चलता है, करेक्ट, क्लाइंट साइड चलता है। इसको सर्वर साइड से रेंडर होने की जरूरत नहीं होती है, ये सर्वर साइड पे ऑलरेडी HTML और जावास्क्रिप्ट फॉर्म में होता है। तो एज इट इज कॉल होता है सर्वर से विदाउट एनी रेंडरिंग। तो जब रेंडर नहीं होगा तो टाइम कंजम्पशन नहीं होगा, फास्ट होगा, लाइट वेट होगा, क्योंकि सर्वर पे कोई कंपाइलेशन नहीं हो रही है, सर्वर पे ऑलरेडी ये HTML और जावास्क्रिप्ट की फॉर्म में ही है और वहां से सीधा क्लाइंट ब्राउजर पे आ रहा है, करेक्ट। So nowadays, especially from past 5 years, we are totally shifted our front end layer to these JavaScript based frameworks or libraries जैसे Angular, React and Vue.js. Is that clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Any question? Any question? If you don't have any question, please go on mute. Okay, no question. So this is our front end layer, right? Angular. This can be React also, as I said, and this can be Vue also, as I said. Correct? Okay. Now, next thing, after front end, what is the second layer that we interact with? फ्रंट एंड तो हो गया, फ्रंट एंड मींस आपने facebook.com खोला और facebook.com लॉन्च हो गया आपके पास, आपके ब्राउजर पे। तो अब नेक्स्ट क्या करोगे आप? फेसबुक में जैसे जाते हो तो फेसबुक में आप क्या करते हो? आप पोस्ट करते हो, रीड करते हो, फेच करते हो, राइट, इंफॉर्मेशन को व्यू करते हो, इंफॉर्मेशन को, करेक्ट टीम? तो फ्रंट एंड के बाद नेक्स्ट लेयर क्या आती है? बैकएंड। तो बैकएंड पे हमारे 2 पॉइंट होते हैं। बैकएंड मतलब हमारा सर्वर भी बैकएंड है, हमारी एपीआई भी बैकएंड है। तो मैं एपीआई से शुरू करता हूँ। सो व्हाट डू यू मीन बाय एपीआई? एपीआई से क्या मतलब है? आई मीन व्हाट यू से, व्हाट इज एपीआई? एपीआई से आपको क्या समझ में आता है? व्हाट इज एपीआई? सर बैकएंड के फ्रेमवर्क्स एपीआई शायद होते हैं। API, sir, which can make interact with other technology. नहीं, To or वर्क हुआ एपीआई। ये तो एपीआई का एक काम हुआ। वैसे एपीआई क्या होता है? इफ यू से एपीआई, व्हाट इज एपीआई? application programming Application programming interface. Very good. It's application programming interface. So now what does that mean? Application programming interface. सर जिसके इसे हम interface Sir, it will connect. one by one. हाँ बोलो जल्दी, तुम बोलो, then share तुम बोलो। इसमें इंटरफेस जो है वो का काम करती है। तो रियल पर एग्जांपल बताओ, अगर डेफिनेशन नहीं क्लियर है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। दिस इज फर्स्ट सेशन, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग तुम्हें सब कुछ पता होगा, बट अगर जिनको पता है, कैन यू जस्ट गिव वन एग्जांपल ऑफ एपीआई? तो एपीआई का अच्छा सा एग्जांपल। Google Map API.
गूगल मैप एपीआई, बट मेरे को लगता है सबको समझ में आएगा गूगल मैप एपीआई क्या होती है। रियल वर्ड में नहीं दे सकते, ये तो टेक्निकल हो गया। रियल वर्ड में एपीआई नहीं होती, रियल वर्ड में Sir, एपीआई होती है। API connect between the client side and server side interference. API connects with client side and server side. ओके, तो मैंने पूछा, गुड, वेरी गुड। वर्ड में सर कोई रियल वर्ड एग्जांपल? मीडिएटर होते हैं किसी काम को करने के लिए, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। कोई रियल वर्ड एग्जांपल? तो उनको कमीशन एजेंट वगैरह बोलते हैं ना, तो उस तरह से। रियल वर्ड एग्जांपल? सर फॉर्म जब ट्रांसपोर्ट सबमिट करते हैं ना उस टाइम वो रिडायरेक्ट होते बैकएंड से आता है। नहीं नहीं, रियल वर्ड एग्जांपल, आई एम सेइंग रियल वर्ड एग्जांपल। डे टू डे लाइफ में एपीआई का क्या एग्जांपल है? ट्रांसपोर्ट Sir, search data, update data. और कोई एग्जांपल समझ में आता हो तो? कोई कोई रियल वर्ड एग्जांपल? या ट्रांसपोर्ट सर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। नो, ओके। सर पेटीएम, तुम्हारा, हाँ, बोलो बोलो सर बोलो। गूगल ड्राइव। सर पेटीएम आपका एक इंटरफेस है। Sir, Twitter bot हो गया, ऐसे तो Facebook भी सभी हो गए, एक ऐप तो वगैरह। तुम्हारे पेटीएम कर देंगे। correct। मैं और सिंपल करता हूँ ना, तो थोड़ा सा थोड़ा रियल वर्ड देखते हैं। तो जो तुम जितना भी इंटरेक्शन कंप्यूटर्स के थ्रू करते हो, वो आज के टाइम में एपीआई से ही होता है। तो लेट मी गिव यू 2-3 एग्जांपल्स, ओके? तो 2-3 good example, let me give you, okay? So one good example is आपका बैंक, करेक्ट? आप बैंकिंग कैसे करते हो? हाउ यू डू बैंकिंग? सो बैंकिंग आप मोबाइल से भी करते हो, लैपटॉप से भी करते हो, डेस्कटॉप से भी करते हो, आप एटीएम के थ्रू भी बैंकिंग करते हो, करेक्ट? आप फोन के थ्रू भी बैंकिंग करते हो, करेक्ट? फोन के थ्रू मतलब नॉट मोबाइल फोन, फोन मीन्स बाय डायलिंग अ कॉल, करेक्ट? टोल फ्री नंबर पे कॉल करके भी बैंकिंग करते हो, आप बैंक जाके भी बैंकिंग कर सकते हो। सो इतने सारे तरीकों से आप बैंकिंग कर रहे हो। आपको क्या लगता है कि कैसे हो रहा होगा ये? मतलब कोई ना कोई मिडिल लेयर है ना, एक मिडिल लेयर है। देयर इज अ मिडिल लेयर विच इज इंटरेक्टिंग, करेक्ट, with all your front end layer and passing on your request and response, correct, to the database. Yes or no? क्या बोलते हो? तुम मोबाइल से भी अपनी मोबाइल ऐप खोलते हो, मनी ट्रांसफर कर लेते हो, लैपटॉप से वेबसाइट खोलते हो, मनी ट्रांसफर कर लेते हो, एटीएम से जाके भी आप ये सब काम कर लेते हो, जैसे पिन चेंज करना, मोबाइल नंबर चेंज करना, मनी ट्रांसफर करना, कैश विड्रॉ करना, राइट? आप बैंक के अंदर जाके भी ये सब काम कर लेते हो, बैंक पर्सनल्स के साथ बात करके उनके साथ भी काम कर लेते हो। तो ये सारा का सारा काम, ये सब काम जो है, ये कौन हैंडल कर रहा है? देयर हैज टू बी अ मिडिल लेयर जो सारे फ्रंट एंड से इंटरेक्ट कर रही है और फाइनली डेटाबेस को अपडेट कर रही है। यस और नो? यस सर। यस और नो? यस वेरी गुड एग्जांपल ऑफ यस सर। करेक्ट। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले बैंकिंग करने के लिए आपको बैंक जाना पड़ता था, यू हैव टू गो टू बैंक एंड देन बैंकिंग प्रोसेस होते थे। प्लीज गो ऑन। पहले आपके पास बैंक्स जो थे वो डिजिटल नहीं थे, तो आपको बैंक जाना पड़ता था और वो मैनुअली वर्क करते थे ऑन पेपर। बट जैसे डिजिटल हुआ सब कुछ, तो एपीआई इंट्रोड्यूस हुई। एपीआई इंट्रोड्यूस हुई, करेक्ट? तो क्या हुआ? वो एक मिडिल वेयर की तरह वर्क करती है जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा मैनेजमेंट सिस्टम को हैंडल करती है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स को हैंडल करती है, करेक्ट? सो API is basically, it's a middle layer. It's a middle layer which connects your front end to your back end, actually, to your database. ऐसा नहीं कि API डायरेक्टली डेटाबेस को ही हिट करती होंगी। API हो सकता है API दूसरी APIs को हिट करती हूँ, करेक्ट? फॉर एग्जाम्पल, आपकी यात्रा.com, आपकी मेकमाईट्रिप.com, आपकी iBibo.com, आपकी व्हाट यू कॉल इट, व्हाट इज द अदर वन, cleartrip.com। ये चारों जो साइट है, करेक्ट, ये चारों साइट्स क्या करती हैं? फ्लाइट डिटेल्स फेच करती हैं, आपकी फ्लाइट डिटेल्स फेच करती हैं। किन कंपनी से? सेम कंपनी से, जेट कनेक्ट, इंडिगो, राइट, गो एयर, राइट, इंडियन एयरलाइंस। सो ये सब जो एयर इंडिया,
आई मीन ये सारी कंपनी से ये डेटा फेच करती है, मतलब इन साइट्स पे आपको सब कंपनी सारी कंपनीज का फ्लाइट डिटेल मिल जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? क्या ये सारी कंपनीज अपना डेटाबेस की इंफॉर्मेशन उनको दे रही हैं, इनसाइट्स को दे रही हैं? इज दैट सो? क्या ये सारी कंपनीज अपना डेटाबेस क्या ये सारी कंपनीज अपना डेटाबेस का एक्सेस इनको दे रही हैं? अगर ये आर्किटेक्चर है तो गलत है, क्योंकि ये तो सिक्योरिटी थ्रेट है। कल को आप और मैं मिलके अगर साइट बनाएंगे कोई, जैसे musafir.com, और उस पर हम इन फ्लाइट्स की डिटेल शो करना चाहते हैं, तो मतलब ये कंपनीज हमको अपना डेटाबेस का एक्सेस दे देंगी कि जाओ और डेटा फेच करो और सब डेटा निकाल लो? नो, राइट? करेक्ट टीम? यस और नो? यस सर, यस सर। यस सर। तो क्या होता है, हम एपीआई, ये एपीआई बनाते हैं, तो ये इन सब कंपनीज की अपनी अपनी एपीआई होती है। ये सब कंपनीज की अपनी अपनी एपीआई होती है जो डेटाबेस से फ्लाइट की इंफॉर्मेशन ही, सिर्फ फ्लाइट की लिमिटेड एक्सेस। सो एपीआई आल्सो यूज फॉर सिक्योरिटी पर्पस, एपीआई आल्सो यूज फॉर इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। तो एपीआई क्या करती है? इनकैप्सुलेट करती है जो डेटा जरूरी नहीं है यूजर को दिखाना, और एब्स्ट्रैक्ट करती है सिर्फ उसी डेटा को जो जरूरी है यूजर को दिखाना। सो एपीआई डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट तो करेगी, लेकिन इंडिगो, गो एयरलाइन, जेट कनेक्ट, स्पाइस जेट, राइट, लुफ्तांसा, और ये जितने भी कंपनीज हैं, फ्लाइट कंपनीज हैं, एविएशन कंपनीज हैं, इनके डेटाबेस से इनकी अपनी अपनी एपीआई जो है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लाइट डिटेल्स ही निकालेंगी। तो let's say Air India will have its own API which will give you the detail of Air India flights. Go Air will have their own API. Indigo will have their own API. SpiceJet will have their own API, which will give only and only flight detail. Now, as I said, all these front-end guys, all these front-end, all these companies like Ibibo, your ClearTrip, Make My Trip, Yatra, इनके पास अपनी एपीआई होंगी जो इन फ्लाइट डिटेल्स की एपीआई से इंटरेक्ट करेंगी। सो एपीआई नॉट ऑलवेज इंटरेक्ट विद डीबी आल्सो, समटाइम एपीआई इंटरेक्ट्स विद अदर एपीआई, ठीक है? तो ये जो कंपनीज हैं, जैसे हमने बनाया musafir.com फॉर एग्जांपल, तो हमें भी एपीआई चाहिए, हमें भी फ्लाइट डिटेल चाहिए, तो हम अपनी एपीआई बनाएंगे। हमारी एपीआई जो है इंटीग्रेट होंगी किस एपीआई के साथ? किनकी एपीआई के साथ? ये जितनी भी एविएशन कंपनीज हैं इनकी एपीआई के साथ, और हम वहां से डेटा को उठाएंगे, और डेटा को उठा के क्या करेंगे? व्हाट विल डू विद द डेटा? व्हाट वी विल डू विद द डेटा? हेलो हेलो, क्या करेंगे मुझे उस डेटा का? सर वो अपनी वेबसाइट के लिए यूज करेंगे सर, जो हम उसको अपनी एप्लीकेशन पे, वेबसाइट पे दिखाएंगे, ठीक है? Yes, sir. अगर अभी आप देखो तो पेटीएम एंड Amazon ये भी फ्लाइट डिटेल्स दिखाते हैं। पेटीएम तो दिखाता है, Amazon का मैंने देखा नहीं, सुना है, बट पेटीएम के पास अगर जाओ, अगर पेटीएम ऐप खोलो तो पेटीएम ऐप शोज यू द फ्लाइट डिटेल्स आल्सो। यस और नो? तो कहने का मतलब है डिफरेंट फ्रंट एंड है, डिफरेंट है, लेकिन एपीआई जो है उस फ्रंट एंड को डेटाबेस से डेटा फेच करके दे रही है। फ्रंट एंड कभी भी डायरेक्टली डेटाबेस से इंटरेक्ट नहीं करती। ओके, तो एपीआई का कॉन्सेप्ट समझ में है, और ये एपीआई कोई नई चीज नहीं है। लेट मी टेल यू वन थिंग, डिड यू रिमेंबर दोज डेज जब आप शॉपकीपर के पास जाकर बोलते थे कि मेरा 100 रुपीज का एयरटेल का रिचार्ज करा दो? डू यू रिमेंबर दोज डेज और नॉट? किसी को ध्यान है? सुने हो, देखे हो? तो if you remember, उस टाइम पर भी ऐसे होता था, द शॉपकीपर यूज्ड टू पिक एयरटेल फोन अगर एयरटेल का रिचार्ज कराना है, वोडाफोन अगर वोडाफोन का रिचार्ज कराना है, व्हाट वाज द अदर वन, आई फॉरगॉट, आइडिया फोन अगर आइडिया फोन का रिचार्ज कराना है, तो 3 डिफरेंट फोन उसके पास होते थे। सो विच मींस दैट फोन हिट्स 3 डिफरेंट एपीआई टू रिचार्ज। नाउअडेज वो जो रिचार्ज एपीआईज हैं वो तुम्हारे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आ गई, आपके वेबसाइट पर आ गई। आप एयरटेल की साइट पे जाओ, एयरटेल की साइट से आप किसी का भी रिचार्ज करा सकते हो। आप जियो की साइट पे जाओ, जियो की साइट से आप किसी का भी रिचार्ज करा सकते हो। आप पेटीएम पे जाओ, पेटीएम से आप किसी का भी रिचार्ज करा सकते हो।
right? So all these things are happening with the help of API. So application programming interface basically आपका business logic लिखता है और उस लॉजिक को एक्सपोज करता है वेब पर, करेक्ट? एपीआई एक हाथ से कनेक्ट करता है आपके फ्रंट एंड को, दूसरे हाथ से कनेक्ट करता है दूसरी एपीआईस को या डायरेक्टली डेटाबेस को, इट डिपेंड्स। ये पार्ट क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर सर, क्लियर। एपीआई क्लियर है? यस सर। एक लास्ट एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ, मैं भूलता नहीं हूँ। आप कभी एटीएम में जाते हो, सो एटीएम में सीरीज वन, एटीएम में आप जाते हो, लेट्स से आप गए एचडीएफसी के एटीएम पे और आपने अपने आईसीआईसीआई बैंक से अकाउंट से डेटा निकाल अपने आईसीआईसीआई बैंक के डेबिट कार्ड से आपने मनी विड्रॉ कर लिया, तो क्या लगता है आपको कैसे पॉसिबल होगा? तो क्या एचडीएफसी के पास आईसीआईसीआई बैंक का डेटाबेस है? इज दैट सो? कनेक्ट क्या 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 एचडीएफसी कनेक्ट होते हैं? एपीआई के क्या एचडीएफसी जो है आपका अकाउंट खोल रहा है? हमारे बैंक के एपीआई से जो है वो कनेक्ट कर रहा हूँ उसकी एपीआई। Let me complete now. Why you are coming in between? Wait, have patience. Let me explain. So point is, maybe तुम्हें पता होगा, बाकी और को क्लियर नहीं हो. So let me finish my phrase, okay? So point is, तुम HDFC बैंक की मशीन में अपना ICICI बैंक का डेबिट कार्ड डालते हो, still you are able to get the money. तो HDFC का इसमें कोई रोल नहीं है, HDFC बैंक का इसमें कोई रोल नहीं है. HDFC बैंक की जो एटीएम मशीन है वो सिंपली कार्ड को रीड करती है, ये किस बैंक का कार्ड है, और जिस भी बैंक का कार्ड है ये उस बैंक को रीडायरेक्ट करा देती है, उस बैंक की एपीआई कॉल कर लेती है. सो आफ्टर पुटिंग योर आईसीआईसी बैंक कार्ड इन द एचडीएफसी मशीन, एटीएम मशीन, उसके बाद जो भी कॉल होती है, जो भी इंटरेक्शन होता है आपका, वो आपकी आईसीआईसी बैंक की एपीआई के साथ ही होता है. आपका पिन नंबर भी आईसीआईसी बैंक की एपीआई लेती है, आपका जो मनी जो अकाउंट अपडेट है वो भी आईसीआईसीआई बैंक की एपीआई करती है. एचडीएफसी सिर्फ और सिर्फ आपको मनी देता है, दैट्स इट. एचडीएफसी आपको सिर्फ और सिर्फ मनी देता है. वो इंफॉर्मेशन भी आईसीआईसीआई बैंक की एपीआई सेव करती है कि एचडीएफसी ने मेरे इस क्लाइंट को कितना मनी दिया, जो मंथ एंड पे वो लोग रिकंसाइल कर लेते हैं. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आया टीम? क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये? यस सर, क्लियर सर। गुड. सो आफ्टर ओके, सो हम अपनी एपीआई किस किस टेक्नोलॉजी में बना सकते हैं, मतलब हाउ मेनी टेक्नोलॉजीज आर देयर इन द मार्केट इन विच वी कैन क्रिएट अवर एपीआई? So there are many like Django, Node.js, Hen, Flux. Okay, others? Anyone else? जेसन। नहीं, जेसन एपीआई नहीं बनाता. और कोई? जेसन एपीआई का रिटर्न टाइप है कि एपीआई जो है जेसन फॉर्मेट में डेटा रिटर्न कर. ओके. और कोई? किन किन टेक्नोलॉजीज में हम एपीआई बनाते हैं या मार्केट में अवेलेबल है? let me answer. So हम जावा में भी एपीआई बनाते हैं. जावा में हम एपीआई बना सकते हैं, हम पीएचपी में एपीआई बना सकते हैं, हम डॉटनेट में एपीआई बना सकते हैं, करेक्ट? सो अभी तक इन तीनों में एपीआई बनती थी. अब नई टेक्नोलॉजी जो मार्केट में आई है वो आई है नोड. हम नोड में भी विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेस.js वी कैन क्रिएट एपीआई बेसिकली. तो हम जो मीन स्टैक या मर्ज स्टैक होता है, करेक्ट, तो उसमें हम एक्सप्रेस.js को यूज करते हैं एपीआई बनाने के लिए, right? So express.js is a new way of creating the API, right? So these are the technology in which we can create API. Again, I repeat, express.js, PHP, .NET, Java, these are some famous technologies in which we can create APIs. Okay? Right? अभी API technically क्या होता है, कैसे हम बनाते हैं, हम इसे REST API क्यों बोलते हैं? When we start the API topic, then I'll explain. Okay. इसके बाद API के बाद क्या आना चाहिए नेक्स्ट?
once your front end connect to API, then what is the next thing that should come? Database. Do you all agree? Database. Do you all agree कि database होना चाहिए? सर API किस टेक्नोलॉजी से बना सकते हैं सर, दोबारा प्लीज बता दीजिए सर। हम लोग .NET में API बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेब API और WCF। हम लोग जावा में API बना सकते हैं, करेक्ट। हम लोग PHP में API बनाते हैं, हम लोग Express.js पे API बनाते हैं। तो अभी 4 हॉट टेक्नोलॉजीज हैं जिनमें हम API बनाते हैं। ओके ओके, थैंक यू। ओके, सो API के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आती है एज वी डिस्कस कि डेटाबेस, राइट। कि अब हमारा API जो डेटाबेस को इंटरैक्ट करती है, डेटाबेस इंटरैक्ट करती है और API बनाती है। सॉरी, डेटाबेस इंटरैक्ट करती है और डेटा या तो पास करती है डेटाबेस को या डेटाबेस से फेच करती है। तो अगर मैंने API बनाया है गेट फ्लाइट डिटेल, तो ये डेटाबेस में डेटा डालेगी या निकालेगी? फेच करेगी। ये फेच करेगी, राइट। If I get details, it is going to fetch the data from the database. अगर मैं बोलता हूँ मनी ट्रांसफर, अगर मैं मनी ट्रांसफर कर रहा हूँ, so what do you think? API जो है मेरे डेटाबेस में से डेटा निकालेगी या डेटा अपडेट करेगी या इंसर्ट करेगी? क्या करेगी? अपडेट करेगी। मेरा अकाउंट अपडेट करेगी, करेक्ट। अगर मैं एप्लीकेशन में अपनी एप्लीकेशन में वेबसाइट में लॉग इन करके if I basically wanted to see my dashboard, जब मैं लॉगिन करता हूँ मेरा डैशबोर्ड आता है, तो जो API है वो डेटाबेस से डेटा लेके आ रही है या लेके जाएगी? सर देखना है तो फिर वो डेटाबेस से लेके आएगी। तो दोनों काम करेगी। जब मैंने लॉगिन किया तो वो मेरा लॉगिन क्रेडेंशियल लेके जाएगी डेटाबेस पर, करेक्ट करेक्ट। और डेटाबेस जो उसको मेरे क्रेडेंशियल को वेरीफाई करेगा। वंस डेटाबेस हैज वेरीफाइड माय क्रेडेंशियल, तब डेटाबेस क्या करेगा? रिस्पॉन्स में मेरा डैशबोर्ड व्यू भेजेगा कि भाई ये करेक्ट बंदा है एंड वी नीड टू शो दिस इंफॉर्मेशन ऑन द डैशबोर्ड। इस केस में मैं API के थ्रू अपना लॉगिन क्रेडेंशियल भेज रहा हूँ और रिटर्न में मुझे API डेटाबेस से क्या दे रही है? मेरे डैशबोर्ड का व्यू। आपने अपने बैंक की साइट पे लॉगिन तो किया होगा ऑब्वियसली, राइट। तो जैसे आप लॉगिन करते हो उसका क्या होता है? लॉगिन करने के बाद आपको सीधा डैशबोर्ड दिखता है अपना, और डैशबोर्ड में मेन इंफॉर्मेशन मिलती है। यस और नो? यस सर। तो जब next term is database, right? When we discuss that next term is database and API is interacting with database, तो हम डिस्कस करते हैं कितने टाइप के डेटाबेसेस होते हैं, कितने टाइप के डेटाबेसेस होते हैं। थिंक एंड देन आंसर, ओके। सर एक तो RDBMS, टाइप के, हाँ वो है RDBMS and DBMS। ओके। और डेटाबेस टाइप्स में ये भी आएगा ना सर, जैसे कि कभी सेंट्रलाइज्ड होता है, क्लाउड डेटाबेस है, SQL डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। मतलब वो सेंट्रलाइज और अनसेंट्रलाइज क्या होते हैं? हाँ, सेंट्रलाइज और अनसेंट्रलाइज जो होता है वो नहीं, टाइप ऑफ डेटाबेस में मैं सेंट्रलाइज्ड टाइप ऑफ डेटाबेस पूछ रहा हूँ। तो एक हो गया RDBMS, एक हो गया DBMS, और किस? सर क्लाउड डेटाबेस। नहीं, ओके। ओके, नो सीक्वल। अभी तक क्या चल रहा था पिछले काफी टाइम से? व्हाट डू कॉल इट, RDBMS और DBMS, मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मींस सिंपली डेटा को डंप कर देना, करेक्ट। टेबल्स में आपस में कोई रिलेशन नहीं होता था। फिर आया रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मींस आपने 2 टेबल्स बनाई, आपने मतलब टेबल्स बनाई और टेबल्स आपस में कनेक्टेड है। कनेक्टेड मतलब रेफरेंस्ड है। मैं बहुत टेक्निकल टर्म में बता रहा हूँ, सॉरी मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, मैं टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं बोल रहा, बिकॉज आई नो देयर आर सो मेनी पीपल हु आर
not who don't know about this part. So RDBMS का मतलब होता है, RDBMS का मतलब होता है कि आपका 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 जो टेबल्स हैं वो कनेक्टेड हैं आपस में एक दूसरे के साथ। कैसे, मतलब एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में या कॉलेज में लाइब्रेरी होती है कि नहीं होती है लाइब्रेरी? यस सर, होती है। उसमें से शेल वगैरह निकालते हैं हम लोग। बिल्कुल। सो जैसे आपके कॉलेज में लाइब्रेरी होती है, तो वो लाइब्रेरी आपका एक उसको समझो कि डेटाबेस है, ओके? और डेटा जो है वो किस फॉर्म में है? रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, करेक्ट? सो आपकी लाइब्रेरी में हर एक रैक जो है, हर एक जो रैक है, रैक स्टैंडिंग रैक, वो एक टेबल समझो। जैसे एक होगी साइंस की, एक होगी साइंस एंड फिक्शन की, एक होगी कंप्यूटर्स की, एक होगी हिंदी की, एक होगी इंग्लिश की, एक होगी मैथ्स की। इस तरह से आपके रैक्स होंगे। सो एवरी रैक इज वन टेबल, और उसमें बुक्स कैसे कैसे असाइन होती है? रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में। यस और नो? यस सर। रोज और कॉलम्स की फॉर्म में आपकी बुक्स जो है अरेंज होती हैं। तो अब अगर मैं एक कॉलेज की लाइब्रेरी देखूं, नॉर्मल लाइब्रेरी देखूं, तो वो डीबीएमएस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब आपका डेटा सिर्फ और सिर्फ रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर्ड है, किसी तरह से रिलेटेड नहीं है, लेट मी टेल यू रिलेटेड वे ऑफ इट। हाँ, जस्ट गिव मी मिनट, जस्ट गिव मी मिनट। ओके, सो जो कॉलेज में आप लाइब्रेरी देखते हो, वो लाइब्रेरी आपकी डीबीएमएस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब जहां पर डेटाबेस है, मतलब लाइब्रेरी को हम डेटाबेस बोलेंगे। जो रैक्स हैं आपकी, वो आपकी टेबल्स हो गई, और जो बुक्स हैं वो आपका डेटा हो गया, और रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में वो सेव है। बिल्कुल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ऐसा ही होता है। अब आरडीबीएमएस कैसे बनाइए, कैसे आरडीबीएमएस का रियल टाइम एग्जांपल क्या लोगे? आरडीबीएमएस का मतलब हुआ, अब एक और एग्जांपल मैं आपके कॉलेज का लेता हूं, कि सपोज आपके कॉलेज में जो टेबल है, मतलब ये जो पूरी लाइब्रेरी है, मैं वो ऐसे डिफाइन करूं। लेट्स से देयर इज अ रूम इन योर लाइब्रेरी जिसमें स्टूडेंट इंफॉर्मेशन पड़ी है, स्टूडेंट फाइल पड़ी है, करेक्ट? तो इसको ऐसे देखते हैं कि आरडीबीएमएस कैसे हुआ। जैसे मेरे पास एक रैक में स्टूडेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन की फाइल पड़ी है, और दूसरा रैक, व्हेन आई से रैक मींस दैट स्टैंडिंग वॉल आई एम टॉकिंग अबाउट, समझ गए ना? कॉलेज में क्या बोलूंगा, रैक्स बोलते हैं, तो क्या बोलते हो आप लोग, जैसे जो जिनमें आपकी बुक्स पड़ी होती हैं? विंग्स बोलते हो, क्या बोलते हो? जैसा जैसे रैक रैक मतलब पूरा एक स्टैंडिंग वॉल जिसको बोलते हैं, समझ गए ना? तो एक रैक में स्टूडेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन की फाइल पड़ी है, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में। और एक और रैक है जिसके अंदर स्टूडेंट की प्रोजेक्ट फाइल्स पड़ी हुई है। मेरी बात समझे? वन रैक होल्ड्स स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन और स्टूडेंट इंफॉर्मेशन फाइल्स, राइट? और एक रैक जो है उसमें स्टूडेंट की प्रोजेक्ट फाइल्स पड़ी हुई है। तो अब अगर मुझको मुझे स्टूडेंट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके प्रोजेक्ट की फाइल भी चाहिए, और उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन फाइल भी चाहिए। सो आई नीड टू चेक इन टू डिफरेंट रैक्स, यस और नो? मतलब मैं एक रैक में जाके, जैसे 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 जो पहला एग्जांपल दिया था मैंने, द अर्लियर एग्जांपल, द प्रीवियस एग्जांपल व्हिच आई हैव गिवन, उसमें क्या था कि मैं हिंदी के रैक में गया तो मुझे हिंदी की बुक्स मिल गई, वहां सारी हिंदी की बुक्स हैं ऑफ ऑल द क्लासेस। मैं साइंस वाले में गया तो मुझे साइंस की बुक्स मिल गई ऑफ ऑल क्लासेस। मैं मैथ्स वाले सेक्शन में गया, मैथ्स वाले रैक्स में गया तो मुझे मैथ्स की बुक्स मिल गई ऑफ ऑल क्लासेस। बट इस केस में मैंने क्या किया, इस केस में मेरा मेरा रैक्स कैसे डिफाइन है कि जैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन रैक, प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन रैक, करेक्ट? एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी रैक, तो एक और रैक ऐड हो गया, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी। तो अब मुझे स्टूडेंट की अगर पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे 3 रैक्स में से इंफॉर्मेशन लेनी है। यस और नो, यू अंडरस्टूड और नॉट?
हेलो, यस सर, यस सर। सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? लेकिन सर अगर हमें पर्टिकुलर इंडिविजुअल अगर प्रिंसिपल बोलता है या कोई बोलता है कि मुझे अजय की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे अजय के प्रोजेक्ट भी चाहिए जो उसने बनाए हैं, मुझे अजय की एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी की रिपोर्ट भी चाहिए और मुझे अजय की पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, तो तुम्हें अब डेटा जो है वो कितनी टेबल से निकालना होगा, कितने रैक से निकालना होगा? हेलो, लेकिन सर इनको जो है अगर हम एक यूनिक कोड दे दें तीनों मेरी आवाज आ रही है क्या? बिकॉज आई एम नॉट एबल टू हियर यू जयंती। यस सर। सर मैं ओके, कह रहा आप हूँ बोलो। कि हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम तीनों को रैक्स में एक यूनिक कोड दे दें, ठीक है, तीनों को, तो जो है वो उसकी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है पूरी तीनों से करेक्ट निकाल लेगा। नहीं, ऐसा कर मेरा सकते क्वेश्चन हैं। ये नहीं था, मेरा क्वेश्चन ये नहीं था जयंती। मेरा क्वेश्चन था कि मुझे अब अजय की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी और प्रोजेक्ट, ये तीनों इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मैं पूछ रहा हूँ मुझे कितनी टेबल्स या कितने रैक्स में से डेटा निकालना होगा? 3 रैक्स हैं। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्या हुआ, इसको बोलते हैं आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटा जो है आपका वो एक जगह पे स्टोर्ड नहीं है, वो मल्टीपल टेबल्स में स्टोर्ड है। Instead of saving all the data or dump the data in one single table, RDBMS says तुम मल्टीपल टेबल्स बना लो और डेटा को इस तरह से सेव करो कि एक तुमने टेबल बनाई पर्सनल इंफॉर्मेशन की, एक बनाई तुमने प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन की, एक बनाई तुमने प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन की, एक तुमने बनाई हॉबीज की टेबल, एक तुमने बनाई से एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज की टेबल। तो अब तुम्हारे पास 4-5 टेबल्स हो गए, करेक्ट? तो अब अगर तुम्हें तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन लेनी है स्टूडेंट की, तो तुम पांचों के पांचों टेबल को कनेक्ट करोगे। तो दैट मीन्स पांचों के पांचों टेबल आपस में, ऑल 5 टेबल्स शुड बी कनेक्टेड टू ईच अदर, should be related to each other. That is what we call RDBMS. RDBMS, Relational Database Management System. Okay. So far people know about two type of database, DBMS or RDBMS, relational or non-relational database, right? Now from past 5-6 years there is one more kind of database coming into picture. Say NoSQL. NoSQL means कोई SQL स्ट्रक्चर ही नहीं, मतलब कोई भी रिलेशन आपस में है ही नहीं टेबल्स का। एवरीथिंग इज सेव्ड एज एन ऑब्जेक्ट, एज अ डॉक्यूमेंट, जैसे फाइल सिस्टम में सेव करते हैं ना, फाइल सिस्टम में। सो NoSQL says you save the data in file SQL, I mean file system. NoSQL query. Yeah. So I'm Deepak. So your another session is lined up. Give me 5 minutes. So your NoSQL says that there is no query, there is no fetching, there is no data saving in rows and columns. डेटा को एज इट इज डंप कर दो। कोई रियल वर्ल्ड एग्जांपल NoSQL का? रियल वर्ल्ड एग्जांपल NoSQL का? टीम, कोई रियल वर्ल्ड एग्जांपल NoSQL का, नॉन टेक्निकल रियल वर्ल्ड एग्जांपल, जहां डेटा रोज एंड कॉलम्स में सेव नहीं है बट डेटा है? टीम, इज माय वॉइस ऑडिबल? जयंती, मनीष, तासीम, रवि, तुम्हें रियल वर्ल्ड में, तुम लोगों ने इतना ट्रैवल किया होगा, तुम्हें रियल वर्ल्ड में कोई एग्जांपल नहीं आ रहा जिसमें डेटा रोज एंड कॉलम्स में सेव नहीं है बट डेटा सेव्ड है? सोचो। नो? सर हम लोग रिजर्वेशन करते हैं तो उसका ट्रेन का हाँ, उसमें तो उनका रहता ना डेटा। तुम्हारी वॉइस बहुत स्लो है, बहुत लो है जयंती। आई गेस यू आर नॉट स्पीकिंग नियर टू योर माइक। एनीवन एल्स? सर रेलवे रिजर्वेशन का सर डेटा। रेलवे रिजर्वेशन रियल वर्ल्ड कैसे हुआ? क्या समझाओगे रेलवे रिजर्वेशन में रियल वर्ल्ड में? सर हम लोग एक फॉर्म भरते हैं, उसमें जो है सर सारा अपना डेटा लिखते हैं, वो हमारा जो डेटाबेस में सेव हो जाता है।
दैट्स अ गुड एग्जाम्पल। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हम एक फॉर्म फिलअप करते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये इसको हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमारे पास रियल वर्ल्ड में नो सीक्वल का मतलब हो गया, जैसे मैंने एक फॉर्म भरा, उस फॉर्म में मेरी डिटेल्स है, मैंने सारी की सारी डिटेल एक फॉर्म में भर दी। आई गॉट अ फॉर्म, उस फॉर्म में, इन दैट फॉर्म आई हैव फिल्ड ऑल द इंफॉर्मेशन राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, करेक्ट? अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, whatever they asked, I filled the complete form। और वो फॉर्म बाय फॉर्म ऐसे ही सबके फॉर्म्स उन्होंने कलेक्ट कर लिए। तो अब ये जो स्टैक बना उनके पास, कैसे कैसे रखते हैं, वो एक फाइल बनाते हैं, उस फाइल में सारे के सारे फॉर्म्स ऐड कर देते हैं, करेक्ट ही? जब हम कहीं फॉर्म्स फिलअप करते हैं, कहीं पर जैसे एग्जाम के लिए जाते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, हमने अपना एग्जाम दिया, सारी शीट्स जो है एक फाइल में ऐड कर दी, और ये हमारा एक पूरा स्टैक हो गया पेपर का। या हमने फॉर्म फिलअप किया तो सारे सारे फॉर्म्स हमारे एक ही फाइल में आ गए एक साथ, करेक्ट? विदाउट पुटिंग इनटू रो एंड कॉलम फॉर्मेट। सारे कैसे आ गए? एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के ऊपर एक के ऊपर एक, राइट? इन अ फॉर्म ऑफ स्टैक, करेक्ट? इन अ सिंगल फाइल। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नो सीक्वल। आपका डेटा, आपका फॉर्म, आपकी आंसर शीट रो एंड कॉलम में सेव्ड नहीं है, इनफैक्ट एक फाइल में सेव्ड है, करेक्ट? एक फाइल में सेव्ड है, जैसे जैसे एक एरे होता है, एक फाइल में सेव्ड है। So that's the example of NoSQL. So nowadays there is a new type of DB came into market called NoSQL, correct? Or NoSQL एक approach है basically. The database which follows NoSQL is MongoDB. So MongoDB is the database as of now which follows NoSQL approach, correct? NoSQL approach means no rows, no columns. Data directly जो है data एक स्टैक की फॉर्म में डायरेक्ट सेव्ड है, एक स्टैक में सेव्ड है, फाइल में सेव्ड है डायरेक्टली जेसन फॉर्मेट में। जेसन फॉर्मेट, ऑफ कोर्स। आपको पूछे किस फॉर्मेट में, मैं बोलूंगा जेसन फॉर्मेट में, बिल्कुल ठीक। तो आपका जो फॉर्म है ना, फॉर्म जो एक फॉर्म भरते हो, आप उस फॉर्म को परफेक्टली समझो कि वो एक जेसन फॉर्मेट है, ठीक है? जिसमें क्वेश्चन होता है, आप उसका आंसर करते हो। तो जेसन फॉर्मेट भी ऐसे होता है, एक प्रॉपर्टी होती है और उसकी वैल्यू होती है, मतलब की होती है, उसकी वैल्यू होती है, की होती है, वैल्यू होती है, राइट? अगर मैं फॉर्म को जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा तो जेसन फॉर्मेट में की होगी फर्स्ट नेम, वैल्यू होगी जो आप डेटा फिलअप करोगे, लास्ट नेम होगी की, वैल्यू होगी जो आप फिलअप करोगे, ईमेल होगी की, वैल्यू होगी जो आप फिलअप करोगे, इस तरह से। तो फॉर्म इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ जेसन फॉर्मेट, ठीक है? So I guess that's good enough information for today. So this is complete full stack development in front of you, where we have front end layer, we have back end layer, we have database layer, और ये तीनों layer किस पे work कर रही है? Server पर। And that server, right, can be anything. That server can be IIS server, that can be Tomcat Apache server, that can be a Node server. So in full stack development, you have front end layer, middle layer, database layer, and server layer, correct? Server layer is the layer where all everything works, जो प्लेटफॉर्म देता है आपके बैकएंड को, आपके डेटाबेस को रन करने के लिए, फ्रंट एंड, बैकएंड और डेटाबेस को रन करने के लिए, right? So that includes the complete full stack development. And finally you have a mobile layer, जिसमें आप मोबाइल में अपना कोड लिखते हो, मोबाइल कोड लिखते हो, okay? Team, all good or no? All good. So, I guess let's close the session for today, right? I hope you enjoyed today's session. मुझे लगता है आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली, आपकी डाउट्स भी आपके क्लियर हुए, करेक्ट? Let's call off for today. And since it is introduction, since it is, let's say, for some of you it is demo, तो जो लोग enroll कर चुके हैं, जो लोग already internship mode में आ गए हैं, उनकी email IDs, I mean, by tomorrow you will get the email IDs. People who still are waiting, I will request, kindly finish your process so that your email ID will also get created. Your Scorpius ID will also get created and you can start working. Okay. I guess that's it from my side. If you don't have any question, let's close the session. Okay, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir.